Hello friends, good afternoon. Here we are at Chile. Chile is almost 75 kilometers away from Istanbul Marquis. Nishantashi from our office, it's 75 kilometers away. So here we are just to record a video of a farmhouse, as well as we want to have a delicious lunch with our local Turkish friend. So right now we are going to have our lunch at Fusha. Fusha is situated at the beach of Chile. I would like to recommend you, if you come to Istanbul, visit this area. That name is Chile. You can see here is a beach, like people are enjoying their swimming. Behind me you can see it is Black Sea, and it really very beautiful sight. So on the other hand, you can feel the music. They are gonna record a shooting of a drama. Behind me you can see they are making a drama recording, and this is really very beautiful sea view. So the taste of food, as well as the fragrance of Black Sea, it is really a nice view. So after having our lunch, we will be going to record a video for a farmhouse, as well as you can see. I'm sorry you can't see, but I'll try my best to record a video, a short clip for villas. I came to know that 2000 per square meter land price is here. Yani if you want to buy a land 1000 square meter, it will be in 2 million lira. So 2000 lira per square meter land is available here in Chile as well, and it is also situated as long as Yalova. So here is very beautiful view. Ya hem tavuk hem So şey mi we are geçerli burada? going to Resim yok. record hem tavuk hem et, video of sadece our karışık food bizde as well. sadece ettir. Here you can Ben see göremedim. Nasıl? my friend Resim yok mu sizde? Malik Tajammal. Görselde resim yok. Resim olsa var ya. Mr. Bari is every time a shy guy. Adana kebap, Urfa He kebap, doesn't Beyt like to kebap, be captured in a Beyt video. sarma, Ne önerirsiniz abi? And here is Abi, our hepsi Turkish. güzel yani. Turkish Karışık friend. olursa hepsinden tatmış olursunuz. You can Karışık- see karışık bir kişi için delicious oldu. bread. Bir kişi yani. Yani And bir porsiyondan biraz daha büyüktür yani karışık. Çünkü hepsinde birer here parça is olduğu the için. Şey mi yapacak abi? view. Karışık bir tane böyle söylesek. Aynen. Doyurur Olur. bizi. Sen abi Ben bugün çok- sana bağlı. Çok açta değilim. Ben de çok açta değilim yani. Sonunda bir şey yapabiliriz. Karışık ne yapalım? Yeah. Et mi şey mi? Really Hem tavuk hem et beautiful. olsun. Bir tavuk karışık alalım, bir et karışık. 2 tane yetelim abi bize. Benim çok açlığım yok. Ben de çok अस्सलाम वालेकुम। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं शिले में, जो कि इस्तांबुल के बिल्कुल साथ है। और यहाँ पे आज हम आपको एक बिल्डिंग मटेरियल जो स्टोर है उसका सर्वे करवा रहे हैं। आप ये मेरे सामने विला देख रहे हैं, तो यहाँ पे शिले के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा विलाज बने हुए हैं। तो हम आज इनका इंटरव्यू करने के लिए आए हैं ताकि हमें पता चले कि ये जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है इसकी क्या क्वालिटी है, किस तरह की ब्रिक्स यहाँ पे यूज़ होती हैं, और एक एवरेज जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है पर स्क्वायर मीटर विला तामीर करने के लिए वो कितनी पड़ती है। जैसा कि हमने पहले बात की थी कि जो अपार्टमेंट है वो ऑलमोस्ट जो है वो 4.5-5 लाख के अंदर या लोवा के अंदर जो है वो तामीर हो जाता है। तो विला की जो कॉस्ट है उसके ऊपर हम बात करेंगे बिल्कुल एंड में। ये आप इनकी जो ब्रिक्स हैं, इंटेज हैं, वो देख लीजिए।
ये ईंटें आपको जो है वो नज़र आ रही हैं। इस तरह की जो ईंट इस्तेमाल होती है ये इस तरह पैक्ड होती है और इसे इसी तरह जो है वो मूव किया जाता है। ये सामान जो है वो इस्तेमाल होता है रूफ टॉप के ऊपर, छत का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है। और इसी तरह जो है हम चलते जाएं तो ये जो सामान है ये भी आपको नज़र आ रहा है, ये भी छत के ऊपर वाले हिस्से में जो है वो इस्तेमाल होता है। और इससे आगे जो है वो हम देखते हैं कि ये जो है वो सरिया है, इस वक्त लोड किया जा रहा है। इसकी पहले पैमाइश की है और अभी ये गाड़ी के अंदर जो है ये लोड कर रहे हैं। ये भी सरिया जो है वो आपके सामने यहाँ पे पड़ा है। ये जो है इस वक्त हम एक बिल्डिंग मटेरियल जो है स्टोर उसका सर्वे कर रहे हैं। इसके अंदर ये जो सामने वाला सामान आपको नज़र आ रहा है ये भी छत का ऊपर वाला हिस्सा जो है उसके लिए है। ये सामने जो है वो फोम पड़ा हुआ है जो नॉर्मली जो है वो हीटिंग सिस्टम को, कूलिंग सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए जो है वो बनाया जाता है। ये एक पेपर टाइप है, ये बेसिकली जब लगाते हैं फ्लोर वगैरह तो उसमें इस्तेमाल होता है। ये आप देख रहे हैं ये भी छत का सामान है। ये सामने जो है फोम पड़ा हुआ है, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया। ये जो है यहाँ पे रेत है और अभी जो रेत है ये छोटे छोटे बोरों में जो है करके वेट उसको गाड़ी के अंदर लोड किया जा रहा है। ये सीमेंट है, ये सामने जो है चिमेंतो, ये भी सीमेंट है। और इसी तरह ये आपको रेत जो है दो तरह से जो है वो नज़र आ रही है। ये रेत इस्तेमाल होती है यहाँ पे, ये जैसे वो बिल्कुल बारीक जो बजरी होती है ये उसी तरह की जो है वो रेत है। और ये मेरे भाई जो हैं यहाँ पे ये इसको वेट कर रहे हैं और लोड कर रहे हैं इसके अंदर इस कुदाल के साथ। ये बजर पड़ा हुआ है जी, जिसे हम बजरी कहते हैं कंक्रीट के लिए। दो तरह का है, एक उसके साथ बारीक है। ये एक बड़ी कंपनी है जिसका ये मटेरियल स्टोर है क्योंकि इन्होंने अपनी सारी मशीनें भी रखी हुई हैं और अच्छे तरीके से ये सारा जो है वो कर रहे हैं। ये तख्ते हैं लकड़ी के और उसके साथ ये सारा जो है वो सीमेंट पड़ा हुआ है। सीमेंट की काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्वालिटीज़ हैं, मुख्तलिफ़ किस्म का सीमेंट जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है। इसके बाद हम आपको जो है वो दिखाते हैं, ये एक जाली है। जब आप प्लास्टर वगैरह करते हैं तो दीवारों पे पहले ये जाली लगा दी जाती है ताकि सीमेंट जो है चिपक जाए। ये भी सीमेंट के जो है वो बॉक्सेस पड़े हुए हैं। और ये सैनिटरी का सामान है, ये रेडी है कैरी करने के लिए। ये सैनिटरी के पाइप्स जो है वो पड़े हुए हैं और छत के जो है मुख्तलिफ़ नमूने और मुख्तलिफ़ जो है वो उसके सैम्पल्स जो है वो ऊपर लगाए हुए हैं। और इसके बाद हम बिल्डिंग मटेरियल स्टोर के अंदर जाते हैं। अंदर जाके आपको जितना भी कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड मटेरियल है उस सारे का सारा जो है वो मौजूद है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पेंट का सामान वो भी मौजूद है और थिनर वगैरह और बाकी जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं पेंट में, टेप है, ये सारे इनके जो है वो औज़ार हैं, वो ग्लव्स हैं। ये हमारे जो देसी इस्तेमाल होते हैं, ये हथौड़ी वगैरह, ये कटर के लिए, ये आरी, ये आप जो है वो वर्मे देख सकते हैं ड्रिलिंग करने के लिए, पेंट करने के लिए जो है वो छोटे ब्रश जो हैं वो मौजूद हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं ये इनके अपने औज़ार हैं। तो ये जी बिल्डिंग मटेरियल स्टोर है और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। अब इनके इंडिविजुअल रेट्स जो है वो तो शेयर नहीं किए जा सकते, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि नॉर्मली जो एक विला है सिंगल स्टोरी अगर मैं बात करूं तो उसकी जो एवरेज कॉस्ट है वो तकरीबन 10,000 लीरा से लेकर 15,000 लीरा पर स्क्वायर मीटर है। जो कंस्ट्रक्शन की मैं बात कर रहा हूं, और जैसा कि इस शिले के अंदर मैंने बताया कि ऑलमोस्ट 2000 लीरा पर स्क्वायर मीटर जो लैंड है वो भी अवेलेबल है। अगर आप 1000 मीटर स्क्वायर लैंड लेते हैं तो वो आपको 2 मिलियन लीरा में जो है वो कॉस्ट करेगी।
और इसी तरह जो है वो 10 से 15 हज़ार और 10 से 15 हज़ार लीरा पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट जो है, उसके अंदर सिंपली जो है आपको वो चाबी देंगे, हर चीज़ उसके अंदर रेडी टू मूव होगी। तो ये जी आपको जो है वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के हवाले से भी जो है आज इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की है। हम अपने क्लाइंट के लिए जो है वो तशरीफ़ लाए हैं। बेसिकली जो है कुछ चीज़ें हमने जो है वो बाय करनी है और हम उसके लिए इंफॉर्मेशन जो है वो पहले से गैदर कर रहे हैं ताकि हम क्वालिटी मटेरियल जो है वो बाय करें और रीज़नेबल प्राइस के ऊपर जो है वो करें। और ये बिल्कुल जो है वो आपको सारी चीज़ों के बारे में व्यू दिया। अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।